Can you please type in the chat box, am I audible, visible? Those who are attending the session. Please type in the chat box so that I can look forward to start the session. Am I audible, visible? Just type in yes in the chat box. Okay, thank you, Sanjana. Thank you, Yash. Others also quickly type in the chat box so that I can start the session. So it would be somewhere close to 1 hour. Thank you, Pranjali, for typing in. Okay, so I'm starting the session as of now. So you can see the key highlights of the session. One, I'll be talking about the admit card. So that is very important because you may commit a mistake and that will not be right. So we are going to look at some instructions which you have to follow. Second agenda is we are going to look at how to attend the actual CAT 2025 so that you can look forward to maximize the sectional and the overall percentile. The third would be we're going to look at some key points which are very important if I want to crack the CAT 2025. And at the last, of course, the motivational stuff. So let's look at the instructions first over here. So if you look at the instructions, guys, so once I read the some of the instructions which are damn important, you can look forward to write in the comment box also. So just let me know, first thing, if I look over here, have you fixed the same photograph, guys, on the CAT admit card, guys? Just write yes, no. If not, then please make sure that you affix the same photograph which you have uploaded while registering for the CAT. So this is very important. I hope everyone must have done by now. Just can you write Kriti, Yash, Pranjali, Sanjana? I hope you guys have affixed the same photograph. Can you write in the comment box so that I understand you guys are listening to me, right? Okay. So that was the first damn important point, that you have to affix the same photograph. So it should be same exactly, guys, what you have uploaded in the CAT form. I hope you have kept the one of the original and valid photo identification proof, guys. So that could be your PAN card, driving license, voter ID, passport, Aadhaar card. So I hope you must have kept one of the ID with you. Correct?
Now, if you look over here, you have 3 slots, guys. Okay, so one is a morning slot, one is the afternoon slot, and the other is the evening slot. So you need to reach the center. They must have been giving you a reporting time also. So what is the timing for the first slot? That is what, 8:30 to 10:30. Just correct me if I put it wrong. So those who are writing the first slot, it should have been 8:30, 10:30. Is it? The afternoon slot should be 12:30, 2:30, I guess. Yes, no? And the evening slot should be 4:30 to 6:30 p.m., right? So just wanted to talk about the reporting time also. So reporting time जो भी आपको भेजा हो इन्होंने, राइट है ना, तो ये टाइमिंग्स गाइस आपके स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, I mean morning, afternoon, evening. Okay. See, I would just suggest one thing, guys. Like if I pick up slot 1, it starts from 8:30. So maybe somewhere close to 7:45, 8 o'clock. Don't get late beyond 8 o'clock for the slot 1 once you reach the center. So maybe somewhere close to 7:45, 8 o'clock for the slot 1, you can look forward to report, not beyond 8 o'clock. So at least keep half an hour with you when you reach the center, right? So for 12:30 timing, I would say maybe reach latest by 12 over there, right? And for 4:30, reach latest by 4 o'clock. Don't delay beyond the time which I am telling you, each one of you, right? And don't try to reach like some of you would be trying to reach maybe 2 hours, 3 hours before the test timing, right? So that won't also make sense, because if you reach too early, it is going to bring some nervousness also. So make sure that you plan accordingly and reach the test center, right? So nothing you have to carry. If you look over here, admit card is of course one of the things which you have to take along with you, and the valid photo identification proof also. If you look the other things, writing pad, pen will be provided, guys, for the rough work, right? So that would be given at the center, and you have to give it back also after using it. So just make sure that you don't try to carry with you mobile phones, electronic gadgets, watches, calculators, stationery items, nothing to be carried along with you, because it won't be allowed in the test center, right? Now, what I wanted to highlight over here is the most important point is, if I look 8th point, right? So a lot of students commit this mistake. So they're saying shoes, footwear with thick soles and garments with large buttons are not permitted, right? So make sure that you dress yourself so that they allow you without any problem. And even if I look over here, rather than wearing shoes, है ना, जूतों की जगह अगर आप लोग maybe floaters में चले जाओ, right? That would be really nice. तो शूज वाला चीज आप ध्यान रखना कि हो सकता है कि शूज कुछ सेंटर पे आपसे खुलवा भी ले, राइट, है ना? तो मैं आपको ये एडवांस में ही बता रहा हूँ गाइस कि शूज आप कोशिश करें कि ना ही पहने. आई नो थोड़ा सा ठंड का टाइम है, बट आप फ्लोटर्स पहन लो, मतलब आपके पैर दिख रहे हो, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो आपको कन्वीनियंटली वो अलाउ कर देंगे. शूज में हो सकता है एट सब सेंटर्स दे कैन क्रिएट एन इश्यू, राइट है ना, और आप टेस्ट से पहले नहीं चाहोगे कि कोई भी इश्यू हो, राइट है ना, ठीक है? इज दिस क्लियर विद एवरीवन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Okay, so these are the major points which I want to discuss about the admit card, right? So any confusion if you have, feel free to write in the chat box related to the admit card instructions, guys. Is this clear with everyone? Kriti, Yash, Sanjana, Pranjali, if you're there, and others. Okay, now let me
look forward to talk about the section wise strategy. That is very, very important, right, Anna? So now I'm going to go one by one for each of the section, and then we're going to look at some critical points also. So remember one thing in the VRC section, with my 21 years of experience, what I'm talking about is key to score is attempts. Now what I mean by this is, see, I'm not advising any flukes, right? But of course, you have to keep attempts on the higher side in the VRC section, because the accuracy is generally on the lower side. So it is very difficult to score on the higher side by attempting less in the VRC section. So make sure that you have to push your attempts in the VRC section. So I keep telling this in the classes also. And one thing is very sure, that you should look forward to get the answers with the elimination approach, unless something very direct is given, right? And if something direct is there, of course, you can look forward to mark the answer. But try get the answer with the elimination approach, so that the accuracy is on the higher side. You have to definitely take chance. I'll talk about when to take the chance. Mandatorily attempt odd man out, as there is no negative, right? So you know that in the odd man out, let's say if you have 5 statements and you have to plug in one of them as the odd man out. So without even reading, guys, just remember, with the help of probability, you can understand the chance is what, 1 by 5 to get it correct without reading, right? So if you do not have any negative, so of course you should look forward to fill the answer. Better would be if you can spend some time with those problems, and then you can look forward to mark the answer, right? So let me just look at these 6 points which are damn critical if I look over here from the perspective of VRC. So this is the advice from my side. If you have planned with some other strategy, you can look forward to continue with that. So maybe the first one, if I look the point, you can look forward to start with the usage part, maybe spending somewhere around 10 minutes. And then you can look forward to do the RC, spending around 30 minutes. Or maybe some of them would love to start with RC first, and then they are going to look at the usage part. So it is up to you completely what strategy you have made for yourself, right? Already talked about that. Try to figure out the answer by the elimination approach. Now this is damn critical, guys, how to push your attempts. So no flukes, right? Anna? Make sure that in the VRC you take chance, right? If you are damn sure of that the answer is out of 2 choices. Now what happens a lot of times, out of the 4 choices, students are able to eliminate 2 easily, and they get stuck with 2 choices. Please listen to this carefully, very important point I'm talking about. So a lot of students don't take chance because they feel that I'm not sure about the right answer. So I would tell you, in the VRC section, there is a lot of subjectivity. So to get 100% sure, and then you mark the answer, which may not be possible in each and every question. So if you are damn sure that the answer is out of 2 choices, what I'll suggest, spend some extra time where the answer is there before you mark the answer out of the 2 choices. Now that extra time, if I look over here, maybe it could be 30 to 60 seconds. So don't keep spending time over that question in figuring out the right answer out of the 2 choices. Just spend another 30 to 60 seconds and try to figure out what finally I should mark the answer. So maybe by spending 30 to 60 seconds extra, you are able to figure out that out of the 2 choices, this is a choice I'm going to mark. I feel this has more chance to get correct. So take that call and mark the answer. If after spending time also you are still not sure, 50-50 you feel, still I would say what you feel should be the answer, you can look forward to mark the answer from there, right? So this third point is damn critical. If you don't take chance in the VRC section, attempts would be on the lower side. So if you have to push your attempts, you have to take chance in those questions where you get stuck with 2 options. Of course, if you get stuck with all 4 options, it's better to leave, right, Anna? So you don't have to go for flukes. I'm just saying that you have to take chance when you get stuck with 2 choices. I hope it is clear with everyone. Already talked about this. Must attempt parajumbles, odd man out, as there is no negative marking and there is a high chance of getting it correct. Already talked about without reading, it is 20%. See, one thing, if I look over here,
in the parajumble sequence one, of course, there is no negative, but a lot of students keeping in mind that there is no negative, they keep doing the sequence one question also. Generally, the sequence one questions are a bit time taking also, if not straightforward. And the chance of getting it correct is actually too less. I'll talk about from the perspective of, let's say, if you have 4 statements, okay. So 4 factorial ways would be there to plug in. So 24 cases and only one of them is correct, right? So the chance is quite less to get it correct. And if you get 5 statements and there is no choice, in that case, the chance to get it correct is 1 by 120, which is not even 1%. Still, I see a lot of students, especially in the 5 statements also, they look forward to fill in something, keeping in mind that there is no negative, and they assume that they may get it right. See, even if I look over here after spending a decent time, there is a possibility that you may not get it correct. So if you just try to fill the answer without reading, the chance is 1 by 120 in the 5 statement parajumble sequence one. Of course, in the 4 one, it is 1 by 24, which is of course on the higher side as compared to 1 by 120. But my suggestion with the experience is, if the choices are not there, parajumble sequence one could be done at the last. But if you have tried a lot of parajumble sequence ones and most of the time you get it correct and you take less time also, you can go ahead and do it, right? But generally for most of the students, it should be done at the last. Now there is a possibility, right, and I'm not saying that it is going to happen for sure, that the parajumble sequence one can come up and they come up with the choices also, guys. So that is what can happen tomorrow, that is 30th of November. So you do have the parajumble sequence one and that too with the choices, right? So if you have with the choices, in that case, the sequence one become a little easier to crack, because you do have the concept of looking at mandatory pair, right? So once you get the mandatory pair, let's say there are 4 statements, 1, 2, 3, 4, right? And you know that 3 ke baad 2 aayega for sure. So you can look for those choices, right? If there are choices in the parajumble sequence one. So be ready for any kind of surprise, and that surprise would actually be for just slot 1 students, right? So that surprise could happen. So what I'm saying, in sequence 1 questions, they can appear in the CAT paper and with the choices also, right? So if you get the mandatory pair and have a look of those options, guys, maybe in the case of choices, the parajumble sequence one become little easier to crack, and probably you can look forward to do it also using the concept of mandatory pair. Maybe you are able to eliminate 3 choices with the help of mandatory pair. The left out would be the answer, right? So that could be as a surprise. So what I'm saying is, slot 1 students को कोई नहीं बचा सकता surprise से, right? Unless कोई जान पहचान हो उनकी कि CAT में कितने questions आ रहे हैं. So we do not have an idea, guys, है ना, कि CAT में कितने questions आने वाले हैं section wise overall, है ना. As a surprise element, VRC में क्या आएगा, LRDA में क्या आएगा, QA में क्या आएगा. So CAT is known for surprises, and if you do not get surprises, guys, then that is also a surprise, okay. So अगर VRC में we look at कि let's see how many questions would come up in the VRC section, and whatever surprise the slot 1 students are going to get, right? Slot 2 और slot 3 वालों को surprise नहीं होगा, at least in terms of कितने questions होंगे और किस टाइप के आ रहे हैं, क्या नया आया है. So आप अगर एक तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, CAT2IIM by मनोज महाजन, because I would come up with the fastest and the accurate analysis of the CAT 2000 paper slot wise, okay. Secondly, you can join this CAT2IIM information group also, right? Okay. So I'll be sharing this link in the comment box also, and I'll pin it also, so that you can look forward to join the information group, so that you don't miss out the fastest and the accurate. So 2 things, fastest and the accurate analysis of each of the slot. So slot 1 वालों के बाद जो slot 2, slot 3 जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि दे नो कितने क्वेश्चंस आए सेक्शन वाइज ओवरऑल. कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आया तो पहले से पता होता है, सो दे आर रेडी विद इट, राइट, है ना. बट स्लॉट 1 वालों के लिए थोड़ी तकलीफ होती है, बिकॉज वो सरप्राइज की तरह है. सो आई वुड जस्ट सजेस्ट एवरीवन, दोज हु आर राइटिंग स्लॉट 1, बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सरप्राइज. एंड जनरली
people who are not able to keep themselves cool and calm, they only find it difficult to handle the surprise. So just remember that, be ready for the surprise if you have in the CAT paper 8. If any query you have related to the VRC section, feel free to write in the chat box. I'm seeing the chat box, guys, so I can look forward to answer. So again, I'm repeating, guys, I'm just predicting parajumble sequence 1 can come up, guys. I'm not saying with surety, and they could be with choices also, right? Na? So be ready for any kind of surprise. Let's come to the next section, that is your nightmare also for a lot of students. So yes, the LRDA section comes in the middle, and what I've written in the bracket is key to score is the DPAT strategy. So I'll talk about each of the letters one by one. Detailed video if you want. Those who are not the student with CAT2IIM, they can look forward to WhatsApp me on 9891565351. I can share the detailed DPAT strategy video, so they can look forward to benefit from the video in the LRDA section in the CAT paper. So of course, I believe with my 21 years of experience that DPAT strategy should be used to maximize your percentile in the CAT LRDA section. Now, what does this D means, right? देखो लास्ट ईयर अगर 2024 की बात करूंगा तो कैट में LRDA थोड़ा सा इजी था, बट अगर थोड़े पिछले साल और पीछे जाएं तो थोड़े टफ आएंगे, है ना? तो डर इज द मीनिंग ऑफ द लेटर डी. तो डर के आगे जीत है गाइस, डरना नहीं है. हो सकता है कुछ सेट्स काफी टफ आए, कुछ सेट्स डुएबल हो. तो अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी वाइज बताऊंगा. तो देखो ये पी प्रैक्टिस तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा अभी तक, कल पेपर है ये. प्रैक्टिस के बाद एनालिसिस भी आप लोगों ने किया होगा, बट लास्ट के 3 लेटर्स थोड़ा सा मैं समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ये सी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना? कई बार सेट्स बनते नहीं है, बट चॉइसेस देख के थोड़ा इजी हो जाता है गाइस, है ना? और चॉइसेस देखना बहुत जरूरी है गाइस, आपको जो भी क्वेश्चन दिए हैं. और एक और मीनिंग है इसका, चुराना गाइस, है ना? तो कई स्टूडेंट्स को ये मालूम ही नहीं है कि चुराना क्या होता है. तो वो डीपैक स्ट्रैटेजी का वीडियो आप लोग ले लो मेरे से आफ्टर द सेशन. तो डिटेल में मैंने बता रखा है कि चुराना क्या चीज है. तो देखो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं सेट पे ना, जैसे 4 क्वेश्चन से मान लो, राइट है ना, या 5 है. कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा है जो पूरा बिना सॉल्व करे भी आंसर हो रहा है. आपने शायद कभी नोट किया हो क्लासेस में, तो ध्यान दिलाया मैंने CAT2IIM की. सेल भी आपने ध्यान दिया हो कि एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है कई बार कि पूरा नहीं पढ़ना है, 1 या 2 लाइन से हो रहा है. सो इफ यू एग्री विथ मी, यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स कि हाँ, चुराना सर हमने सीखा है और कई बार देखा भी है कि 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं चुराने से, राइट है ना? पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता. तो ये बहुत जरूरी है. जो नेक्स्ट लेटर टी पे आ रहा हूं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, टीटा. ठीक है ना? व्हाट आई मीन बाय दिस आई टेल यू. पहले एस पे आता हूं गाइस. ये सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है इस पूरे डीपैक्स का. तो सिलेक्शन ऑफ सेट्स करना बड़ा जरूरी है. तो मोस्ट ऑफ देम वुड अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी गाइस के दे वुड लुक फॉरवर्ड टू डू दी सिलेक्शन गाइस, है ना? 4 सेट्स हैं, 5 सेट्स हैं, तो आप उसमें से चूज कर रहे हो जो डुएबल है, राइट है ना? तो सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं, और मैंने आपको बता रखा है कि मे बी इफ यू कैन लुक फॉरवर्ड टू स्पेंड क्लोज टू 5 to 6 minutes इन डूइंग दी सिलेक्शन. और आप इसको ना वेस्ट की तरह मत लो. और सिलेक्शन मेरे हिसाब से जो करना चाहिए आपको ना, एक आपने देखा होगा सेक्शन वाइज ना क्वेश्चन पेपर लिंक होता है गाइस, है ना? अगर ध्यान दिया तो ये तीनों सेक्शन में होता है, क्वांट में भी, LRDA में भी और VRC में. मोस्ट लाइकली राइट टॉप कॉर्नर पे होगा. और आप एक काम करो, अगर नहीं देखा है तो कैट की वेबसाइट पे जाओ. जो कैट का इंटरफेस है ना, वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या है, राइट है ना? तो जस्ट लेट मी नो गाइस, सभी लोगों ने कैट का इंटरफेस चेक कर लिया है कैट की वेबसाइट से जाके कि किस तरीके से सेक्शंस आएंगे, क्या कैलकुलेटर दिया हुआ है इन्होंने, राइट है ना? सो यू शुड नो कि क्वेश्चन पेपर लिंक सेक्शन वाइज कहाँ पे होता है. सो पहले से आइडिया होगा तो ठीक रहेगा, राइट है ना? सो आई सजेस्ट एवरीवन गाइस एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस आल्सो कि कैट इंटरफेस आप चेक करो वेबसाइट से, कैट की जो है, राइट है ना?
तो जैसे हर सेक्शन में क्वेश्चन पेपर लिंक होता है, तो यहाँ पे भी LRDI में आप उसको क्लिक करो, ठीक है। फिर आपको डीपैक स्ट्रैटेजी का जो वीडियो है वो आपको मालूम, मैं आपको क्लास में भी करा चुका हूं, जिसको नहीं मालूम है प्लीज लुक फॉरवर्ड टू चेक विथ मी ऑन दी व्हाट्सएप। तो मैंने आपको सिलेक्शन के कुछ क्राइटेरिया बता रखे हैं गाइस, है ना, हाउ टू डू दी सिलेक्शन ऑफ सेट्स, के यार ये पहले करना है, ये बाद में करना है। कुछ पैरामीटर्स हैं कि टाइप आप देखते हो, राइट, है ना, टाइप से काफी आइडिया लगता है आपको कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, राइट, है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए हुए हैं, लेंथ कितना है। तो ये सारे पैरामीटर्स लेके 5 to 6 मिनट्स में वी कैन लुक फॉरवर्ड टू डू दी सिलेक्शन। किसी को अगर थोड़ा ज्यादा भी लग रहा है 6 to 8 मिनट सिलेक्शन में, तो आई डोंट माइंड, बिकॉज ना आपका नेक्स्ट जो टाइम बचेगा ना वो आपका स्मूथ जाने वाला है गाइज। अगर आपने जो सबसे आसान सेट से करने वाले सेट्स हैं वो अगर आपने सिलेक्ट कर लिए हैं गाइज, है ना, तो सिलेक्शन प्लेज अ क्रिटिकल रोल। और देखो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हो गाइस, है ना, तो आपको क्वेश्चंस हमेशा रीड करना है। मैंने डीपैक स्ट्रैटेजी में बता भी रखा है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो टीटा होंगे गाइस, है ना, मैं टीटा पे भी बात करता हूं। तो मान लो अगर आपको पढ़ते वक्त ये समझ आ रहा है कि ये सेट या तो करना ही नहीं है, मुझे बहुत डिफिकल्ट है, या एंड में करना है, है ना, तो करना नहीं है या एंड में करना है, तो एंड में भी हो सकता है टाइम ना मिले, और करना नहीं है तो आप आओगे नहीं वहां पे। तो आपने इतना तो पढ़ ही लिया होता है प्रॉब्लम में कि यार जैसे मान लो कितने प्लेयर्स हैं, लेट्स से दे आर टॉकिंग अबाउट देयर आर 8 प्लेयर्स, राइट, है ना, गेम्स टूर्नामेंट का क्वेश्चन है, और पूछा है कि हाउ मेनी प्लेयर्स हैव वन इन दिस राउंड, राइट। एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया मैंने। तो आपको मालूम है कि अगर 8 ही प्लेयर हैं तो आंसर मेरा जो हो सकता है 0 से 8 में कुछ भी हो सकता है, कोई भी नहीं जीता इसमें, राइट, है ना, राउंड में, या मैक्सिमम सारे के सारे जीत गए, राइट, है ना। तो अगर आपको कोई डिफिकल्ट सेट मिलता है जो आप करोगे नहीं या एंड में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये काफी लोग इग्नोर करते हैं। तो अगर आपको एक छोटी रेंज मालूम पड़ रही है तो आप ना अपनी नोटबुक में जो आपको राइटिंग पैड मिलेगा वहां लिख लें कि इसका आंसर मुझे अभी डालना है आफ्टर डूइंग दिस सिलेक्शन, राइट, है ना। ये सुन लीजिए गाइस, है ना। तो अगर आपको मान लो रेंज मालूम पड़ रही है 0 to 8 है, सो अगेन एडवाइस कर रहा हूं मैं आपको, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, जनरली मिडिल नंबर कुड बी द आंसर। तो 4 है, 5 है, इस तरह के आंसर हो सकते हैं अगर रेंज मेरा 0 से 8 है गाइस, है ना। तो आप अगर उसको सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, एंड में देखोगे, हो सकता है टाइम ही ना मिले, तो आप ध्यान रखो कि आफ्टर डूइंग द सिलेक्शन आपका सबसे पहला काम होना चाहिए वहां पे आंसर आपको फीड करना है गाइस। इज दैट क्लियर? और दूसरा ये है कि अगर आपने समझ लिया कि ये करने लायक सेट है, तो टीटा है, लेट्स से रेंज वही 0 से 8 है, करने लायक है, तो आप पहले करोगे, फिर जो भी आपको लगता है आंसर उसमें होना चाहिए, भले बने या ना बने, आपको फिल करना है। मेरी गारंटी है गाइस कि टीटा कई बार कैट में इस तरह के छोटे छोटे रेंज में आते हैं, 0 to 9, 0 to 5, है ना, नंबर ऑफ राउंड्स ही मान लो 6 हैं, तो पूछ लिया कि कितने राउंड्स में इस बंदे को 10 से ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं, तो जब मेरे राउंड्स ही मैक्सिमम 6 हैं, राइट, तो 0 से 6 मेरा आंसर फिर रहेगा वहां पे। तो वाई विल आई नॉट फिल, नेगेटिव है नहीं गाइस, तो ये टीटा भी वैसे ही है जैसे पैराजंबल ऑड मैन आउट की तरह, जब नेगेटिव है नहीं तो क्यों नहीं करेंगे गाइस? क्या मेरी बात से आप एग्री कर रहे हो गाइस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज लेट मी नो। तो टीटा अपन को करना ही करना है गाइस फिल, अगर रेंज छोटा है, और एस का मतलब एक सिलेक्शन है, और दूसरा है इसका मतलब सिली मिस्टेक्स गाइस, है ना। तो ट्राई अवॉइड सिली मिस्टेक्स, क्योंकि बहुत ज्यादा सेट्स आप बना नहीं पाते जनरली अगर एलआरडीए टफ होता है, तो जो भी बना रहे हो उसको आपको करना चाहिए गाइस सही से, विदाउट सिली मिस्टेक्स, राइट, हाँ। और ये ध्यान रखना गाइस, है ना, कि जब भी डिफिकल्ट सेट आए, राइट, ये अगर अप्लाई करते हो ना गाइस, चाहे कॉन्ट हो चाहे एलआरडीए हो, क्या करोगे गाइस? स्किप तो काफी लोग करते होंगे, राइट, है ना। स्माइल एंड स्किप करना है, ये नहीं कि आप घबरा जाओ, राइट, है ना। अगर टफ है मुस्कुराइए और छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि कई बच्चे उस टफ में फंस जाएंगे गाइस, है ना। लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज डिफिकल्ट है तो आप स्माइल करेंगे और स्किप कर देंगे गाइस, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू वुड बी एबल टू डू रियली वेल इन ईच ऑफ द सेक्शन। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, डिफिकल्ट आरसीज है, अगर मान लो डिफिकल्ट सेट है, डिफिकल्ट क्यूए क्वेश्चन है, स्माइल एंड स्किप करते हो तो गाइस, है ना। क्या मेरी बात समझ आ पा रही है आप लोगों को, सभी को?
Please type in the chat box if it's clear with everyone, है ना, what we are talking about from the LRDA perspective. So बहुत basic points हैं जो अपन को ध्यान रखना चाहिए ताकि मैक्सिमाइज कर सके अपना परसेंटाइल कल रेट, है ना. ठीक है, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू ज्वाइन द CAT2IIM इन्फॉर्मेशन ग्रुप सो दैट यू डोंट मिस आउट द फास्टेस्ट एंड द लेटेस्ट, I mean fastest and the accurate analysis of each of the slots guys, है ना. Okay, let's come to the QA section. ये काफी important है guys, है ना. Key to score is to reach till the last question guys. Okay, तो क्वांट में ये बहुत जरूरी है गाइज कि आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचो. तो दो स्ट्रैटेजी है गाइज, है ना. स्ट्रैटेजी 1 उनके लिए है जो 60 से ऊपर परसेंटाइल क्यूए सेक्शन में मॉक्स में ला रहे हैं, तो वो लगा सकते हैं स्ट्रैटेजी 1. व्हाट इज स्ट्रैटेजी 1 गाइज? इसमें ना आप 2 राउंड्स बनाते हो गाइज, है ना. राउंड 1 क्या है? यू हैव टू गो विद द फ्लो गाइज, है ना. तभी आप लास्ट तक पहुंचोगे गाइज, है ना. ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपने देखे ही ना हो क्वांट में गाइज, है ना. सो ये आप लोग दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, चाहे आप स्ट्रैटेजी 1 लगाओ चाहे स्ट्रैटेजी 2 लगाओ, आपको क्वेश्चन एटलीस्ट देखना है, मतलब आपको लास्ट तक पहुंचना ही पहुंचना है, ताकि कोई इजी क्वेश्चन अगर लास्ट में है तो छूट ना जाए गाइस, है ना. तो जो स्ट्रैटेजी 1 लगाएंगे 2 राउंड्स करेंगे, राउंड 1 राउंड 2. राउंड 1 का मतलब है पढ़ा, आपको मालूम है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पता है प्रोसेस क्या है, टिक मतलब करना है गाइस, है ना. तो जनरली ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे? डू नॉट गेट बॉक्ड डाउन विद एनी क्यूए क्वेश्चन फॉर मोर देन 2.5 मिनट्स इन दी फर्स्ट राउंड. तो जो क्वेश्चंस आपके राउंड 1 में होंगे ना, जनरली वो 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 2.5 मिनट्स, उसी रेंज में ही होने चाहिए. तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए एग्जैक्टली क्या करना है, तभी उस रेंज में आप सॉल्व कर पाओगे गाइस, है ना, विद इन दैट 2.5 मिनट्स. और राउंड 2 में क्या रखोगे गाइस? वो क्वेश्चंस रखो आप जिनमें टाइम लग सकता है, या आपको मालूम नहीं एग्जैक्टली क्या करना है, ट्राई करके पता चलेगा क्या करना है, टाइम लग सकता है बेसिकली. दैट कुड बी केप्ट फॉर रिव्यू, राइट, है ना. मार्क फॉर रिव्यू भी ऑप्शन होता है गाइस, है ना. और कुछ क्वेश्चन तो क्रॉस वाले होंगे गाइस, है ना. अरे भाई क्या है ये, क्या करना है? स्माइल एंड स्किप, कोई भी राउंड में नहीं आएंगे गाइस, है ना. अब स्ट्रैटेजी 2 वाले काफी लोग हो सकते हैं गाइस, है ना, जो जिनका 60 परसेंटाइल से कम जनरली आ रहा है क्यूए सेक्शन मॉक्स में. तो मैंने इंडिविजुअली भी बता रखा है कि आपको स्ट्रैटेजी 1 करना है कि स्ट्रैटेजी 2, जो CAT2IIM के स्टूडेंट्स हैं. तो आपको क्या करना है, वापस से क्वेश्चन पेपर लिंक पे स्ट्रैटेजी 2 वाले प्लीज, ज्यादा करने के चक्कर में जो हो रहे हैं हो सकता है वो भी ना हो. तो अपन को बहुत ज्यादा लेके नहीं चलना है, जो डुएबल है राइट वो ही करना है. तो जस्ट सिलेक्ट दी डुएबल क्यूए क्वेश्चन जो डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या आपको मालूम है कि मान लो ये क्वेश्चन बन तो जाएगा, टाइम बहुत लगेगा, वो भी आप रख सकते हो. तो स्पेंड सफिशिएंट टाइम इन सिलेक्टिंग, तो दैट कुड बी 6 to 8 मिनट्स लग सकता है किसी को इन डूइंग द सिलेक्शन. तो प्रॉपर सिलेक्शन करना है गाइस, है ना. तो जो बहुत डायरेक्ट है राइट, जो आपको बहुत इजी लग रहे हैं, वो आप शुरू में करोगे, एक ही राउंड है आपका. और वो क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि प्रोसेस तो पता है मुझे राइट, है ना, बट टाइम लगेगा, वो अपन बाद में कर सकते हैं गाइस, है ना. तो मेक श्योर दैट स्पेंड द रिमेनिंग टाइम इन सॉल्विंग इट. तो जितने भी क्वेश्चन हो, वो मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ गाइस, है ना. दैट कुड बी 3, दैट कुड बी 5, दैट कुड बी 7. सो डिपेंड करेगा कि क्यूए सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल क्या है. इज दैट क्लियर विद एवरीवन? यहां तक कोई कुछ पूछना आपको सेक्शन वाइज, एनी वन ऑफ यू डू लेट मी नो. लास्ट में अभी अपन जाते हैं कुछ क्रिटिकल पॉइंट जो ध्यान रखने हैं कल के पेपर से पहले, एंड देन टुवर्ड्स द एंड सम मोटिवेशनल स्टफ आल्सो, राइट, है ना. Anything you want to ask, guys? Please let me know. Yeah, all clear, guys. You can write yes, all clear. किसी को कोई confusion हो, कुछ हो, please feel free to write in the chat box, guys, है ना. I'm just waiting for your response, guys. And do make sure that you like the you click the like button also, guys, है ना. ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस. तो ये ध्यान रखना गाइस कि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, स्माइल एंड स्किप रखना है अपने साथ, राइट, है ना. So we are moving to some critical points that are very important to crack the CAT 2005.
I keep saying this guys, believe in yourself. देखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती गाइस, है ना, ध्यान रखिएगा। तो आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखें कि यस मैं कर सकता हूँ जो भी तैयारी करी है ना। कीप योरसेल्फ पॉजिटिव, बहुत जरूरी है। मतलब देखो जो भी आपने पढ़ा है राइट, है ना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है गाइस। और ये ध्यान रखिए कैट एग्जाम ना खाली एप्टीट्यूड, इट्स नॉट ओनली अबाउट एप्टीट्यूड राइट, है ना, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द टेम्परामेंट। तो वो जो 2 घंटे आप स्पेंड करते हो ना, वो बहुत बहुत क्रिटिकल है गाइस, है ना। और सबसे ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखना सभी लोग गाइस, कीप योरसेल्फ कूल एंड काम। तो मैं कह रहा हूं जो कुछ पढ़ा है आपने, जो कुछ ट्रिक शॉर्टकट सीखा है ना, इफ यू होल्ड योर नर्व्स यू वुड बी एबल टू डू वेल राइट। तो जो भी सरप्राइज आए स्लॉट 1 में गाइस, है ना, बच्चे जो फेस करेंगे, प्लीज कूल काम रहना और होल्ड योर नर्व्स ताकि आप अच्छे से पेपर दे सको। हो सकता है कोई सेक्शन बहुत ज्यादा टफ आ जाए, एलआरडी स्पेशली राइट, है ना, तो सभी के लिए रहेगा राइट, है ना। तो मेक श्योर कि आप अपना कूल काम रहना जरूरी है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जितनी मर्जी तैयारी कर लो, अगर आप कूल काम नहीं रहते हो तो कैट वुड बी टफ राइट, है ना। तो कैट उनके लिए बनाया गया है जो अपने आप को शांति से पूरा 2 घंटा देके आ सके राइट, है ना। सो प्लीज डू नॉट प्रेस एनी पैनिक बटन। काफी लोग कर देते हैं गाइस, है ना। दैट कुड बी सरप्राइज एलिमेंट स्लॉट 1 स्टूडेंट्स, और स्लॉट 2 स्लॉट 3 के सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहेगा अगर आप ये चैनल फॉलो कर लेते हो। एक तो CAT2IIM by मनोज महाजन सब्सक्राइब कर लेते हो, क्योंकि आई विल कम अप विद द फास्टेस्ट एंड द एक्यूरेट एनालिसिस फॉर ईच ऑफ द स्लॉट्स। इवन ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप राइट, है ना, ताकि आपको मालूम पड़ जाए अपडेट्स राइट, है ना। तो सरप्राइज वही मैंने बोला डिफिकल्ट सेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है ना। तुक्का मत मारना गाइस, है ना। अगर कोई चीज डिफिकल्ट आ गई है ना तो तुक्का मारना शुरू कर दो, नहीं करना है अपन को। नेगेटिव मत ले आना सेक्शन में कोई, है ना। स्माइल एंड स्किप स्ट्रैटेजी डेफिनेटली फॉलो करनी है। सिलेक्शन इज डैम इंपॉर्टेंट ईच ऑफ द सेक्शंस, है ना। आरसी ऐसा ना हो कि कॉम्प्रिहेंड ही नहीं हो रहा है, अपन कर रहे हैं राइट, है ना। तो अवॉइड डूइंग एन आरसी अगर कॉम्प्रिहेंड ही नहीं हो रहा है, है ना। और एलआरडीए में टफ सेट्स हैं तो अवॉइड डूइंग दैट। क्यूए में टफ क्वेश्चंस, अवॉइड डूइंग दैट, है ना। ट्राई अवॉइड सिली शिट मिस्टेक्स, है ना। तो मेक श्योर जैसे कॉन्ट में होता है गाइस, मैं ये भी एक इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा हूं कि आपको सॉल्व करते हो एक्स निकल आएगा, है ना, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, x + 2। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2x। तो मैं सभी को एडवाइस करूंगा कि स्पेशली कॉन्ट हो या एलआरडी या जो भी हो, जो पूछा हो ना, स्पेंड 4-5 सेकेंड एक्स्ट्रा टू सी पूछा क्या है, ताकि सिली मिस्टेक ना हो राइट, है ना। रेशो देख लो क्या पूछा है, मिल्क इज टू वाटर पूछा है, मिल्क इज टू टोटल पूछा है, am I right? So I don't want anyone to do a silly mistake because silly mistake से unnecessary अपना नंबर जाते हैं राइट। जैसे अगर मान लो MCQ होता तो सिली मिस्टेक कर दिया तो 4 नंबर चले गए गाइस, एक तो नेगेटिव हो गया और 3 नंबर आते वो चले गए गाइस, और टीटा भी होगा तो 3 नंबर जा रहे हैं गाइस, है ना। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करेगा गाइस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इंजीनियर्स के साथ या जो काफी ज्यादा पढ़ लेते हैं। So don't get emotional or have ego with questions, otherwise you'll get bogged down. जैसे मान लो आपने लॉग काफी कर लिया तो अब आपको लगता है कि यार लॉग के तो मैं सारे क्वेश्चंस बना सकता हूं, तो ऐसा नहीं होता है गाइस, है ना। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि चाहे एलआरडीआई हो चाहे आपका कॉन्ट हो, मान लो कोई प्रेफरेंस है या लाइकिंग है आपको राइट, है ना। जैसे एलआरडीआई में कई लोगों को ना डेटा अरेंजमेंट है या सीटिंग अरेंजमेंट की लाइकिंग होती है, तो आप देख सकते हो वो सेट, लेकिन टफ होगा तो करना नहीं है गाइस, है ना। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं तो ट्राई अवॉइड राइट, है ना। वैसे कॉन्ट में अगर लॉग आप देख सकते हो, बट अगर टफ है तो यू हैव टू स्माइल एंड स्किप कि यार बैड डे, लॉग अच्छा था मेरा लेकिन टफ आ गया क्वेश्चन, मैंने अपना दिमाग लगाया है कि मुझे मुस्कुराना है और छोड़ देना है गाइस, है ना। मेक श्योर कि वो 2 घंटे पता नहीं चलने चाहिए गाइस। गो विद द फ्लो, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट। ये बहुत क्रिटिकल है गाइस। नो टारगेट्स। अगर कोई अभी भी टारगेट लेके चल रहा है कि मेरे को 70 नंबर बनाने हैं, 60 नंबर बनाने हैं, 80 नंबर बनाने हैं, तो बेवकूफी है गाइस, है ना। बेवकूफी क्यों है? बिकॉज मुझे मालूम ही नहीं है डिफिकल्टी लेवल क्या है राइट, है ना। तो हाउ कैन आई डिसाइड बिफोर हैंड कि ये टारगेट होना चाहिए, इतने क्वेश्चंस करने हैं मुझे वीआरसी में, इतने सेट्स करने हैं मुझे एलआरडीआई में, इतने क्वेश्चंस करने हैं क्यूए में। कुछ आप डिसाइड पहले से नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको पेपर का डिफिकल्टी लेवल ही नहीं पता है। तो टारगेट्स लेना ही नहीं है, आपको बेस्ट शॉट देना है अपना, उसमें जितना हो जाएगा गाइस, है ना। क्योंकि टारगेट से क्या होगा ना, आपको प्रेशर बिल्ड हो सकता है गाइस। मान लो क्यूए बहुत टफ आया, आपने टारगेट ले रखा है 10 क्वेश्चन का, भी कई लोग टारगेट लेके चलते हैं यार, है ना।
तो उनको दिखता है कि 10 क्वेश्चन में 99 परसेंटाइल टाइप आ जाए, तो आप समझो कि अगर बहुत टफ आ गया तो कम पे आ जाएगा 19 परसेंटाइल, राइट है ना। और आपने टारगेट ले रखा होगा 10 का, तो वो हो ही नहीं रहा है, तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, फ्लूक्स भी मारना शुरू कर सकते हो, राइट है ना। तो नहीं करना है, नो टारगेट्स गाइस, है ना। और कैट का पेपर लिखते हुए तो बिल्कुल भी जज मत करना अपना परफॉर्मेंस। कई लोग तो वहीं पे पोस्टमार्टम चालू कर देते हैं गाइस, है ना। यार वीआरसी तो इतने ही करे, यार एलआरडीआई में तो एक ही सेट करा। भैया 2 घंटे के बाद करना है पोस्टमार्टम, जो भी करना है, उससे पहले नहीं करना है। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? और जो भी आपका मॉक परसेंटाइल आया है ना, इट डजंट मैटर टू मी, इट शुड नॉट मैटर टू यू ऑल्सो। काइंडली डोंट डिसाइड योर कैट 25 परफॉर्मेंस बेस्ड इन एडवांस बेस्ड ऑन दी मॉक परसेंटाइल। तो मैं आपको एक आइडिया पहले भी दे चुका हूं कि जो भी मॉक परसेंटाइल आपका आ रहा है, जैसे मान लो अगर एवरेज 90 के आसपास आ रहा है, हाई लाइकली है कि आपका 97 98 कैट में आ जाए, अगर सब कुछ उसी तरीके से रहता है जैसे आप मॉक्स देते आए हो कि हाँ मेरा स्मूथ गया कैट पेपर, तो जो भी मॉक्स में परसेंटाइल आता है उससे काफी ऊपर आता है गाइस कैट में, राइट है ना। और मैं कह रहा हूं अगर बहुत कम भी आया हो, 20 आया हो, 30 आया हो, है ना, फॉरगेट अबाउट द मॉक परसेंटाइल, है ना। आपको बस फोकस करना है कि बिल्कुल कूल काम रह के मुझे कैट पेपर देके आ जाना है गाइस, है ना। तो जो भी पोस्टमार्टम करोगे आफ्टर राइटिंग द पेपर, do not carry the baggage of one section if it happens while moving to the other section or sections। ये बैगेज का क्या मतलब है गाइस? देखो एलआरडीआई जनरली टफ आता है, तो एलआरडीआई में अगर कम सेट्स बनते हैं ना तो वो दिमाग में चलता रहता है, और क्यूए जब नेक्स्ट में जाते हो अगर वो आसान भी होता है ना, तो हो सकता है कि अगर वो बैगेज लेके चल रहे हो ना एलआरडीआई का, तो आपको क्यूए में आसान होते हुए भी शायद स्ट्रगल करना पड़े स्कोर करने में। बात समझ आ रही है मेरी? तो डोंट कैरी द बैगेज ऑफ वन सेक्शन टू द अदर। जो कैट 2IIM के बच्चे हैं उनको मैंने इंडिविजुअल कैट 25 एग्जाम स्ट्रैटेजी का पीडीएफ दिया है। मैं हर एक बच्चे के साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, हर एक बच्चे के साथ एग्जाम स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, हर एक बच्चे के साथ आई डू दी पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो, वहां पे भी आपको शेयर करता हूँ इनपुट्स। तो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि काफी पर्सनलाइज अटेंशन रहता है, तो मैंने हर एक को दे रखा है एग्जाम स्ट्रैटेजी, जिनके साथ भी मेंटरिंग मैंने ली है, तो वो आप एक बार रीड कर लेना एंड फॉलो इट टुमारो गाइस, है ना। Never give up, right? Don't stress yourself by thinking too much, है ना, कि कल क्या होगा। होता है ना, थॉट्स चलने लगते हैं, एलआरडीआई टफ आ गया तो, है ना, एलआरडीआई में गलत सिलेक्शन हो गया तो, ये सब कुछ नहीं सोचना है, जस्ट पॉजिटिव रहना है और कुछ नहीं, है ना। ये फालतू के थॉट्स लाने ही नहीं है। देखो मैं भी मोटिवेशनल सॉन्ग्स प्ले कर सकता था यहाँ पे यूट्यूब पे, बट अगर मैं प्ले करूंगा ना तो कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है, ना। सो आई वुड से कि प्लीज लिसन टू सम मोटिवेशनल सॉन्ग्स, है ना, आफ्टर द सेशन। तो कर हर मैदान फतेह मुझे काफी मोटिवेट करता है, और भी मोटिवेशनल सॉन्ग्स आपको करते होंगे मोटिवेट, और ये बहुत जरूरी है गाइस। जितनी मर्जी तैयारी कर ली हो, तो अभी इस सेशन के बाद मैंने कोई सेशन रखा है कैट 2IIM का गाइस, है ना। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप वेल, राइट है ना। तो चाहे आपका मॉर्निंग स्लॉट हो चाहे आफ्टरनून हो, तो मेक श्योर कि आप 8 से 10 घंटे का नींद ले सको, जो भी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो। तो ये क्लियर है गाइस, ये बहुत बहुत, अगर मैं देखूं ना इन 19 पॉइंट्स में, मेरे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मुझे याद है कि मैं एक बार कैट पेपर देने गया था बिना सोए, नींद ज्यादा आई नहीं मुझे, है ना, तो दिमाग नहीं चला, सही बोल रहा हूँ गाइस मैं आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन रिवाइजिंग कोई ट्रिक है, शॉर्टकट है, फॉर्मुलेज है, वो सब करने का जरूरत ही नहीं है, राइट है ना। जो कर लिया आप लोगों ने अभी तक। अभी जो करना है, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, मे बी इफ यू लाइक वॉकिंग तो वॉक कर लो गाइस, है ना, या कोई मोटिवेशनल मूवी देख सकते हो इफ यू वांट टू लाइक प्रॉब्ली स्पेंड द रिमेनिंग टाइम ओवर हियर, राइट है ना, आज का जो दिन है। और मतलब ऐसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जो आपके माइंड को रिलैक्स करे, राइट है ना। उल्टा मत करने लगना, राइट है ना, कि ऐसी एक्टिविटीज करने लगो जो माइंड को स्ट्रेस डाले, राइट है ना। और सोना बड़ा जरूरी है, सो मे बी इट कुड बी 8 आवर्स 10 आवर्स डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी, राइट है ना। मुझे तो बहुत नींद चाहिए, तो आप लोगों को मालूम है आपकी बॉडी को कितना नींद चाहिए गाइस, है ना। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू स्लीप वेल। लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट गाइस। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कोट गाइस, है ना। आई कीप यूजिंग इट इन माय सेशंस आल्सो, और अपनी लाइफ में भी गाइस, है ना। तो ये ऐसा नहीं है खाली क्लासेस में ही मैं यूज करता हूँ, मैं अपने लाइफ में भी ये बिलीव करता हूँ। काफी सेटबैक हुए मेरे लाइफ में, तो ये कोट ने काफी हेल्प करा है। तो मैं सुबह उठ के मुझे अच्छे से याद है
एक पीरियड में साल भर मुझे ये कोट देखना पड़ा, राइट है ना. सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट, राइट है ना. सो आप लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है सेल्फ, राइट है ना. तो जब भी आप डिमोटिवेट फील करते हो कभी भी आगे लाइफ में, सो मेक श्योर दैट आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोचो. एंड सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है लाइफ में. इट्स नॉट अबाउट जस्ट कैट, इट्स अबाउट योर लाइफ ऑल्सो, राइट है ना. तो सेल्फ बिलीव रखें. और देखो ये आपको मालूम है गाइस है ना, कल पेपर है तो ना दो घोड़े हैं, राइट है ना, दिमाग में गाइस है ना. एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. तो ये आपके ऊपर है. जिसको आप ज्यादा खुराक दोगे वो आप पे हैवी हो जाएगा गाइस है ना, या हावी हो जाएगा बोलूं. तो मेक श्योर दैट आप पॉजिटिव रखें अपने माइंडसेट को. तो माइंडसेट सारा गेम है. कल जब आप कैट देने जाओगे तो जस्ट बी पॉजिटिव और कुछ भी नेगेटिव सोचना ही नहीं है गाइस है ना. तो अपने पॉजिटिव थॉट्स लाओ. यस कि मैं बढ़िया करूंगा कल कैट में, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया भी है, कॉन्ट भी करा है, LRDA भी करा है, इंग्लिश का स्ट्रैटेजी पता है. सो वी गोइंग टू रॉक, राइट है ना. सो आपको बस ये पॉजिटिव थॉट लेके ही जाना है, कूल काम लेना है. कोई भी सरप्राइज हो आप उसको अच्छे से हैंडल करो, है ना. Okay, so last slide of this session, guys. So I'll be looking at wishing each one of you. So now is the go kill the cat 2025. मेरा ये फेवरेट पोएम भी है. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. कल आपको कोशिश ही करनी है. ये मेरा एक फेवरेट सॉन्ग भी है, मोटिवेशनल, कर हर मैदान फतेह. यू कैन लिसन टू इट आफ्टर द सेशन. A quote है guys, don't climb the mountain with the intention that the world should see you, right? In fact, climb the mountain with the intention to see the world. So go climb the mountain, all the students, tomorrow 30th of November. Remember, डर के आगे जीत है. Please remember this, जो होगा देखा जाएगा. आग लगा दो. Best of luck from my side guys. With love, CAT2IIM. Not just an educator but a mentor, and we surely care for your results. So all the best guys. Anything if you want to ask me you can do so guys. All the best each one of you. And for CAT2IIM students, I'll just keep a short interaction abhi in some time. I'll let you know guys, है ना. Anything if you want to ask guys. मस्त रहना गाइस है ना, जो होगा देखा जाएगा गाइस है ना. कैट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, रिमेंबर दैट है ना. पीपल विदाउट डूइंग MBA आल्सो डू वेल इन देयर लाइफ. तो सारा गेम माइंड का है गाइस है ना. हाउ डू यू सी लाइफ, है ना. Thank you everyone for attending the session. Thank you so much.